Hello and welcome to my channel BioStudies. Myself Komal, your biology tutor. In this lecture, we are going to discuss about endomembrane system. It is a group of organelles in eukaryotic cells that work together to modify, package, transport lipids and proteins. So endomembrane system basically it's a group of different organelles in eukaryotic cells that work in a coordinated way. अब इसमें कौन सी ऑर्गेनेलिज आएंगी दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स ये सभी ऑर्गेनेलिज कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगी और एक सिस्टम क्रिएट करेंगी दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो फर्स्ट ऑर्गेनेली क्या है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ईआर. The presence of a network or reticulum of tiny tubular structures scatter in this cytoplasm. तो बेसिकली यहाँ पे इसका स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया दे रखा है कि ये एक टिनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेटवर्क में प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म में ये सिचुएटेड है. दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Endoplasmic reticulum or ER divides the intracellular space into two distinct compartments, that is inside the ER, which is known as luminal, and extraluminal, that is outside or cytoplasmic compartments. Clear? Next, so based on whether on endoplasmic reticulum ribosomes are present or ribosomes are absent. It is of two types, that is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है और सिक्रीशन में. प्रोटीन सिंथेसिस क्यों? बिकॉज यहाँ पर राइबोसोम्स का इन्वॉल्वमेंट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है. नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी सारे PYQs में ये आया है कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स कहाँ होता है, मेजर साइट क्या है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट पॉइंट, इन एनिमल सेल्स लिपिड्स like steroidal hormones they are synthesized in SER or smooth endoplasmic reticulum. Clear? नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ आप डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो हो रहा है. रफ एंडोप्लाज्मिक में ये ब्लू डॉट्स आपको शो हो रही हैं यहाँ पर, दिस वन डॉट्स, दैट मीन्स राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द ट्यूब्यूलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स and here you can see no ribosomes are present. The surface is completely smooth, that's why they are smooth endoplasmic reticulum. Clear हुआ? अब next, that is next organelle is Golgi bodies or Golgi apparatus. Camillo Golgi 1898 first observed densely stained reticular structure near the nucleus. They consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae. The Golgi cisternae, they are concentrically arranged near the nucleus with distinct convexes or the forming phase and concaves the maturing phase. देखिए इस कंप्लीट पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि गोल्गी कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया, पूरा मतलब बता सकते हो गोल्गी बॉडीज़ के बारे में बताया कि ये क्या है, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स है जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है. बेसिकली ये सिस्टर्ने और फ्लैट डिस्क लाइक शेप के स्ट्रक्चर से कंसिस्ट होता है जिसमें एक कॉन्वेक्स फेज होता है. कॉन्वेक्स शेप समझते हो आप, कॉन्वेक्स और कॉन्केव शेप्स. कॉन्वेक्स फेज होता है जिसे हम फॉर्मिंग फेज बोलते हैं और कॉन्केव असिस और मैच्योरिंग फेज होता है. सो इसके दो पार्ट्स हो गए. एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टर्नेज ये कंप्लीटली गोल्गी अपरेटस को फॉर्म करते हैं. हम पिक्चर में इसको देखेंगे. हाँ, यू कैन सी इट इज द 2D स्ट्रक्चर एंड दैट इज द 3D स्ट्रक्चर. सो या here is cis phase or the forming phase, convex phase and concave phase. Yes, forming phase and maturing phase. Next points. The Golgi apparatus principally perform the function of packaging materials. Important point. Packaging materials
to delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. मेन फंक्शन क्या है इसका? दैट इज द पैकेजिंग ऑफ मटीरियल. इंपॉर्टेंट है ये. Mark this point, it's very important that it perform the function of packaging materials. Materials to be packed in the form of vesicles from the ER, that is endoplasmic reticulum, fused with the sys phase of Golgi apparatus. देखिए गोल्गी अपरेटस के सिस फेज के साथ वेसिकल्स जो कि ER से फॉर्म हुआ था वो फ्यूज होगा एंड इट मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज. This explains why Golgi apparatus remains in close association with endoplasmic reticulum. That means they work in a coordinated way. A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स वहाँ पर बनते हैं. दे आर मोडिफाई इन दिस सिस्टर्नी. मॉडिफिकेशन देखो फॉर्मेशन प्रोटीन्स का कहाँ पर होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज कि मॉडिफिकेशन कहाँ पर होगा? दीज आर मॉडिफाई इन दिस सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी अपरेटस एंड बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांसफेज. ये फॉर्मिंग फेज से एंट्री करेगा, मॉडिफिकेशन होगा, फिर ये रिलीज्ड आउट होगा बाय दिस ट्रांसफेज. गोल्गी apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids. सो इस स्लाइड में आपने क्या सीखा कि गोल्गी अपरेटस का मेन फंक्शन क्या है? पैकेजिंग का, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स का. दूसरा वो पैक कैसे करेगा उसका हमने पूरा प्रोसीजर देखा. सेकेंड पॉइंट जो था दैट इज इम्पोर्टेंट साइड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. सो नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज लाइसोसोम्स. These are membrane-bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. And that membrane-bound vesicle is lysosomes. And जो isolated lysosome है that have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes, which includes lipases, proteases, and they optimally active at the acidic pH. मैं एक पॉइंट बताती हूँ कि जो एंजाइम्स होते हैं वो उनकी एक डिफरेंट पीएच होते हैं. कोई बेसिक पीएच पर काम करते हैं, कोई एसिडिक पीएच पर काम करते हैं. ठीक है, एक ऑप्टिमम पीएच पर वो एक्टिव होते हैं. दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट, वैक्यूल्स, लास्ट ऑर्गेनेली ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. Vacuole is the membrane-bound space found in the cytoplasm. It contains water sap or the water content, excretory product, and other materials that is not useful for the cell. The vacuole is bound by a single membrane that is tonoplast. Again, very important point. In plants, the tonoplast facilitate the transport of a number of ions. आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है. ये एक मेम्ब्रेन होती है, इसके थ्रू आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है. अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल्स. इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन. अब देखो वैक्यूल्स में भी टाइप्स आ गए. लाइक अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो एक्सक्रीशन में वर्क करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. दे आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग दी फूड मटेरियल. तो प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स है जो कैसे बनी है? इनगल्फिंग दी फूड मटेरियल्स, राइट. और एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है जो अमीबा में प्रेजेंट है, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन. सो यस, इस पिक्चर में देखिए ये वैक्यूल का स्ट्रक्चर है. ये सेल कंप्लीट आप देख सकते हो. ये प्लांट सेल का एनाटॉमिकल डायग्राम है. और वैक्यूल्स प्लांट्स में काफ़ी साइज इनका बड़ा होता है और इसकी एक टोनोप्लास्ट लेयर होती है. यस, आप देख सकते हो ये टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये सेल सैप है. क्लियर? सो यस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर, that is QA time, question answer time.
इस लेक्चर में हमने कंप्लीट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब ये टाइम है जब हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जिससे हमारा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनेलीज कंटेन एंजाइम दैट हैव डाइजेस्टिव एक्शन? अगेन वेरी फास्ट क्विक आंसर आना चाहिए आपकी तरफ से, बिकॉज हमने कंप्लीट अभी डिस्कस किया है यही सब कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनेली कंटेन एंजाइम दैट हैव डाइजेस्टिव एक्शन? दैट इज लाइसोसोम्स। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ इज? अभी हमने पढ़ा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, क्या फंक्शन देखा अभी हमने? दैट इज एक्सक्रीशन। दिखाऊं अभी? यस, बैक चलते हैं हम थोड़ा सा बैक। यस, देखिए इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी आता है, तो इसका आंसर क्या है? दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, lysosomes are rich in very easy question that is in hydrolytic enzymes. Main organelle involved, again involved दो बार हो गया, involved in modification and outing of newly synthesized protein to their destination is? मॉडिफिकेशन के लिए, आउटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स के लिए, बताइए कौन सा ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, synthesized proteins. Yes. Next question, important site for formation of glycoproteins and glycolipids, that is Golgi apparatus. Yes. So here is the end of this lecture. I hope आपको complete endomembrane system समझ आया होगा, concepts clear हो गए होंगे, उनको शेयर कीजिए, and again thank you.